Hello everyone. So day before yesterday we are discussing about the language. So yesterday it was a gap, so I will remind you a quick reminder of language. What is language? Language means it's the medium of exchanging our views, our thoughts, opinions, or whatever the resources you want to communicate with others. एक ऐसा माध्यम जिसकी वजह से जिसके हेल्प लेकर हम क्या करते हैं, अपने व्यूज को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज को, सजेशंस को हम एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं. दिस इज कॉल्ड एज मीडियम, सॉरी इट इज अ लैंग्वेज, जिसको हम हिंदी में भाषा बोलते हैं. As we all know that language all through the world, roughly if you can say 6,500, more than 6,500 languages are spoken all over the world. But as a part of the CBSE school, we will discuss about English speaking, is English language. Why English language is so important? Why English is so popular all over the world? English क्यों बहुत जरूरी है? Why we need to speak in English? Because every country has some different their official languages. है ना? सारी countries में जो होती है official language different होती है. और for that sake, if you every people in the world getting interested to learn English for the second language, that will surely make to understand what you want to do, because English language is the key to opening the door to success. ये एक सक्सेस, एक कामयाबी का एक दरवाजा खोलती है आपके लिए. That is why we always focuses you all to please use English language. Make an environment, even just go for the try. Don't think that it will be right or wrong. सबसे पहले समझना सुनिए, सुनने के बाद समझिए, then you will start speaking. ठीक है? That is why language is very important. English language, why it is so important? We discuss on that day also. I am going to remind you again why English is so important. The most important thing that I told you that it will give an impact on the front of the people in the society. आपका एक impact बनता है जब आप English language fluently use करते हो. The second thing we discussed is that interview. During the interviews, whenever you after the passing of the matrics or high schools or graduations, post graduations, you will need a job. And when you are going for the recruitment of the job, you will have to pass through you have to go through an interview. आपको एक इंटरव्यू पे जाना पड़ेगा, इंटरव्यू के थ्रू पे पासेस पे जाना पड़ेगा. And all the questions and answers you have to give in English language. आपको इंटरव्यू जब होता है तो आपको मोस्टली क्या होता है, 99% जो इंटरव्यूज होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं. दैट इज व्हाई इंग्लिश इज सो इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश, योर इंग्लिश इज टू गुड, दैट विल श्योरली मेक योर कैरियर. यू कैन बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर. यू कैन ओपन योर कोचिंग क्लासेस. Most of the students, most of the people, those who are not learning English, don't know English, they went to the spoken classes. So you can make your careers if you are good in English. So try to speak, try to get some knowledge from this skill. And the third and fourth thing is that it will create an opportunity of employment. ये क्या करता है कि employment की opportunity आपको देता है. Because as we all know that if you can speak English, then you are a graduate man. You will be a skillful man. English speak करना भी, बोलना भी एक क्या skill है आपके लिए. And for that, many things that give you if you are a good English speaker. English, if you know the English language, then we discuss here is that 4 skills that is required in an effective communication. We discussed that also on that day कि 4 चीजें हैं जो बहुत जरूरी है. It is very important while speaking or learning English for the beginners. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी बिल्कुल नहीं जानते हैं. Even they don't know about like your primary classes boys or girls, they don't know what is alphabet, what is letters, what is phonemes, what is grammatics, what is synonyms, what is antonyms. So these are the parts of our English language. This is English grammar. But
For the beginners, if you want to be a good speaker, if you want to be a good English speaker, you have to get these skills. 4 skills required for effective communication, and the first one is listening. बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स में जो शुरुआत करते हैं बोलने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिसनिंग का। लिसनिंग मींस सुनना, यानी किसी चीज को जो बोला जा रहा है उसको सबसे पहले सुनने की कोशिश करिए। इफ यू बिकम अ गुड लिसनर, एक अच्छे श्रोता बनिए। लिसनर को हम श्रोता बोलते हैं, जो सुनने वाला होता है। एक अच्छा श्रोता ही क्या होता है? एक अच्छा स्पीकर होता है। अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर, जो अच्छे से सुनेगा वही अच्छे से बोलेगा। सो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इन द रिक्वायर्ड फॉर द स्किल ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज दैट लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग, सुनना। कम्युनिकेशन समझ में आता है आपको? कम्युनिकेशन क्या होता है? लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इंटर रिलेटेड। आप इसको इंटर रिलेट करके कह सकते हो। लैंग्वेज क्या होती है? एक मीडियम होती है ना? एक मीडियम, एक भाषा होती है जिसके जरिए से हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, मोर देन। और कम्युनिकेशन क्या होता है? बातचीत होती है। बातचीत मींस इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग व्यूज, आइडियाज, सजेशंस। आपकी जो भी बातें, जो भी रिसोर्सेज है, जो आप क्या करना चाह रहे हो, किसी 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच क्या करना चाह रहे हो, आप बताना चाह रहे हो अपने मीडियम्स के जरिए। वो कम्युनिकेशन एक क्या होता है? चैनल होता है। इट इज अ चैनल ऑफ शेयरिंग योर रिसोर्सेज, शेयरिंग योर इंफॉर्मेशन। और इसमें कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। अगर बात करनी है तो कम से कम 2 लोग चाहिए ना बात करने के लिए। सो 2 और मोर देन 2 पीपल्स, 2 लोग हो या 2 से ज्यादा लोग हो, तो हम क्या करते हैं? उसको कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें होती है जो आई विल डिस्कस इन फर्दर PVT क्लास, like how many types of communication is there, verbal, non-verbal, written communication is there. So these are the parts of that, but we will discuss these 4 skills today. The first one is listening. Always try to listen carefully. हमेशा सुनने की कोशिश करिए। जब भी कोई चीज बताई जाए, कोई इंफॉर्मेशन आपको दी जाए, कोई स्पीच चल रही हो, कोई डिबेट चल रही हो, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा हो, in the class, either in the hall, whatever the notice or whatever the information is given, just try to listen carefully. जब आप सुनते अच्छे से हो, then you will come to know, आप उसको समझ पाओगे अच्छे से, है ना? जब आप अच्छे से सुनोगे, then आप अच्छे से उसको समझोगे। So be a good listener, and after that you will become a good speaker also. Next point is speaking. Yes, I already mentioned that if you are a good listener, then you will become a good speaker. अगर आप अच्छे से सुनोगे तो अच्छे से उसको क्या करोगे? रिप्लाई करोगे, जवाब दोगे। Then the third point is reading. अच्छे से सुनोगे तो अच्छे से बोलोगे, and then you can do better in reading. आपकी रीडिंग पोर्शन भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। अच्छे से लिखो, अच्छे से जब पढ़ोगे, then you will write in a good manner. आप अच्छे से लिखोगे भी। So these are the 4 points: listening, speaking, reading and writing. These 4 points, these are the 4 major points. And out of that, if you are missing out of 4, if you are not in good in any of one of them, अगर इन चारों में से एक में भी आप क्या अच्छे नहीं हो, आपने कमियां, आपने लिमिटेशंस दिखा दी उसमें, तो your communication will not be considered as a good communication. Is that clear? इन चारों में से अगर आप अच्छे से सुनते नहीं हो तो अच्छे से जवाब दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। You cannot speak. If you have not listened what I said, then you will not speak. अगर आपने अच्छे से सुना नहीं है तो आज आप अच्छे से बोल नहीं पाओगे। अगर आपने अच्छे से सुना नहीं है, अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, तो how you will write, how you will read? आप गलत पढ़ोगे भी, and the last one is गलत तरीके से आप उसको क्या करोगे? लिखोगे भी। So all the conversations, all the communications need these 4 things to be done correctly. 4 चीजें जो आपको अपने माइंड में रखना है। समझ में आया? Now the most important thing, जो सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, tips to learn English quickly. अभी हम बात करने वाले हैं कि लर्न कैसे करना है, ठीक है? कैसे सीखना है। बोलने की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। पहले सीखना है, फिर उसके बाद बोलना है।
ठीक है, द फर्स्ट वन इज build your vocabulary. What is the meaning of vocabulary? What meanings? Grasping powers. जब आपके पास वर्ड्स होंगे ना बोलने के लिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो. तो सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम क्या होती है जब आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हो? You are not getting words. Mostly students coming to me and saying that, sir, हम बोल नहीं पाते हैं, हम वर्ड्स नहीं खोज पाते, ढूंढ नहीं पाते. Because of what? Because we are not prepared the vocabulary. आप vocabulary पे ध्यान नहीं देते हो. I told you to make a notebook of vocabulary. Learn at least 5 to 10 vocabulary word meanings daily. Grasping power तभी आपकी जब अच्छी होगी जब आप vocabulary पे काम करोगे. जो words होते हैं, शब्द जो होते हैं, words होते हैं ना शब्द, ये दुनिया का सबसे पावरफुल चीज होती है. Words. It is the most powerful word. It is the most powerful thing in the world. एक शब्द क्या क्या कर सकता है? A word can praise you. A word can motivate you. A word gives you joy. A word gives you happy. आपको खुशी देता है वो, आपको दुख देता है, आपको प्रेज करता है. A word will जो motivates you, आपको मोटिवेट करेगा. A word will demotivate you. आपको वर्ड जो है आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं. तो ये वर्ड बहुत पावरफुल चीज होती है. इसीलिए द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लर्न इज बिल्ड योर वोकैबुलरी. आपको सबसे पहले क्या करना है? अपनी वोकैबुलरी को क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है. और इसके लिए एक नोटबुक मैंने बनाने के लिए बोला था. जस्ट ट्राई टू गो एट होम, मेक अ न्यू कॉपी ऑफ वोकैबुलरी अपार्ट फ्रॉम द रीडिंग क्लास. लर्न एट लीस्ट 5 न्यू वर्ड्स. आप ज्यादा नहीं, not more than 5. If you are capable of learning 10 words, then you can write the 10 words. ठीक है? आप डिक्शनरी से हजारों वर्ड्स लिख सकते हो, बट लिखने का कोई फायदा नहीं है. This is not benefit of doing that. You have to learn. जब तक आप वोकैबुलरी को लर्न नहीं करोगे, तो आप अच्छे से स्पीक नहीं कर पाओगे, आप सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को बना नहीं पाओगे. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट build your vocabulary. The second thing is try to speak. Leave this one. I will explain it later. And after that, vocabulary, move to the translators to help in pronunciations. The next important thing that I explained in the very first day of the reading class about the pronunciation. Pronunciation के बारे में बताया था ना? Why it is so important? Pronunciation is very important while speaking. And for that, use translators. ऑनलाइन ट्रांसलेटर्स आते हैं. ठीक है, जब आप गूगल पे जाते हो, किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आप गलत बोलते हो, किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आपको चाहिए होती है, तो आप ऑनलाइन ट्रांसलेटर्स यूज कर सकते हो. गूगल पे एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. तो हर चीज का क्या होता है? एवरी कॉइन हैज 2 फेसेस. हर एक सिक्के का 2 फेस होता है. लिमिटेशंस भी होती हैं, तो उसकी एडवांटेजेस भी होते हैं. तो वो आप यूज कैसे कर रहे हो? तो इंटरनेट का यूज अगर अच्छे से करोगे तो इट इज अ गुड फॉर यू. एंड गो टू होम, यूज ट्रांसलेटर. आफ्टर बिल्डिंग द बिल्ड अप योर वोकैबुलरीज, ट्राई टू यूज द ट्रांसलेटर्स. ऑनलाइन ट्रांसलेटर्स का यूज आप करिए कि इसकी प्रोनाउंसिएशंस क्या होती हैं. नॉलेज, फ्यूचर, नेचर. अगर आप प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं पता होगी तो आप नेचर को क्या पढ़ेंगे? नटुडे पढ़ेंगे. फ्यूचर को फुटुडे पढ़ेंगे. नॉलेज को कनौदर के पढ़ेंगे. बट these things you have to keep in your mind. आपको ये सब सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा. और इसके लिए आप ऑनलाइन ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हो. You can talk to your teachers. You can ask your teachers. आप टीचर से हेल्प ले सकते हो कि सर इसका एक्सप्लेन कर दीजिए, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा. Because most of the words that we have right, which we are pronouncing till now we are pronouncing wrong. उसको गलत तरीके से पढ़ रहे थे, तो इसको सही करना है. This is your learning age. अभी से आप जब सही करोगे तो it will make your future right. The third point is active listening. Again it comes in this way also. That was I mentioned in the skills required for the listening now. First, the most important thing is listening. जब आप listen करते हो अच्छे से, read often and read loud. Fourth option क्या आपका है? Actually I have mentioned listening, that is why I kept it short. Fourth option is read and read loud. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रीडिंग नहीं लगाते हैं,
उनको लगता है कि हमारी क्या है, रीडिंग अच्छी है ना। आप में से कितने लोग क्या करना है, उनको रीडिंग लगानी है। जब तक आप रीडिंग करते हो, रीडिंग को तेज करना है, लाउडली आपको रीड करना है। इफ यू डूइंग दैट, इट विल बिकम एन हैबिट एंड दोस वर्ड्स विल कम टू योर माइंड। जब आप रीडिंग तेज करोगे, लाउडली पढ़ोगे, तो वो जो आप वर्ड्स पढ़ रहे हो ना, वो वर्ड्स क्या होता है, आपके ब्रेन में फिल्टर हो जाता है, तो वो आपको लर्न हो जाएगा। समझ में आया? दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। हमेशा रीडिंग लगाने की कोशिश करिए। When you will go for the spoken language, जब आप कभी भी किसी स्पोकन क्लासेस में जाओगे, वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आपको रीडिंग नहीं आती? न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ने के लिए बोलते हैं because in the newspaper we will get some new words। आपको रोज नई नई खबर मिलती है, न्यूज़ मिलती है ना, उसमें नए नए वर्ड यूज होते हैं। इसीलिए न्यूज़पेपर की रीडिंग लगाने के लिए बोला जाता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए। ठीक है, तो आज से आप लोग रीडिंग स्टार्ट करिए। जो लोग रीडिंग नहीं करते हैं, 5 to 10 minutes you will take on reading। नेक्स्ट इज यूज डिक्शनरी फॉर सिनोनिज्म। सिनोनिम्स के लिए आप क्या करोगे, डिक्शनरी का यूज करोगे। सिनोनिम्स जानते हो क्या होता है? द वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग और नियरली द सेम मीनिंग। किसी वर्ड की कई मीनिंग्स होती है जो नियरली सेम होती है। ठीक है, तो उस जैसे उन वर्ड्स को क्या करो, आप सिनोनिम्स में यूज करो। किसी भी वर्ड को लिख लो, उसके सिनोनिम्स कम से कम 3 वर्ड्स ऐसे ढूंढो जो उसके नियरली मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, ब्राइट, शाइन। ठीक है, ब्राइट का क्या होता है, शाइन भी होता है। इसी तरीके से और भी सारे वर्ड्स आप सिनोनिम्स में कर सकते हो। नेक्स्ट इज सब मूवीज देखते हैं? यस सर। हिंदी में देखते हैं? यस। साउथ मूवीज देखते हो? है ना? बट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, ट्राई टू वॉच मूवीज, हॉलीवुड मूवीज इन इंग्लिश। हॉलीवुड की मूवीज देखिए, कार्टून मूवीज देखिए, जो भी मूवीज देखिए आप सबटाइटल के साथ, इंग्लिश के साथ सबटाइटल देखिए, देन इट विल मेक यू मोर इंपैक्टफुल। अब ऐसा नहीं सबने बोल दिया कि जाके मम्मी पापा से बोल दो, सबने बोला है कि सिर्फ मूवीज देखनी है, पढ़ना नहीं है। इंग्लिश सीखने के लिए इट विल हेल्प यू। कार्टून्स बच्चे देखते हैं, उसको इंग्लिश में देखो। मूवीज जो देखते हो सबटाइटल के साथ आप इंग्लिश में देखो, इट विल श्योरली हेल्प यू। लर्न फ्रेजेस नॉट सिंगल वर्ड्स। आप लोग क्या करते हो, बड़े मीनिंग सिंगल वर्ड्स यूज करते हो ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइट। फ्रेजेस यूज करो, फ्रेजेस को पढ़िए। ऑलवेज, दिस इज नॉट द लास्ट बिकॉज़ वी डोंट हैव सो मच टाइम। देन ऑलवेज एक्सेप्ट दैट। हमेशा ये एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट गुड स्पीकर। दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ऑलवेज एक्सेप्ट दिस पॉइंट दैट यू आर नॉट गुड स्पीकर। हमेशा इस बात को ध्यान में रखो, ये सोचो और ये कहो, खुद से एक्सेप्ट करो कि मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं हूं, इंग्लिश का स्पीकर नहीं हूं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जब आपको ये लगेगा कि मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं, तो यू विल वर्क हार्ड, है ना। जो चीजें हम नहीं कर पाते उसमें मेहनत करते हैं। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप ये एक्सेप्ट करो, यू एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट अ गुड स्पीकर। जब आपको बात ये समझ में आएगी कि हम स्पीकर अच्छे नहीं हैं, तो वी विल go through that, you will work hard, you will get some English grammatically whatever you are making wrong, वो आप करेक्ट करोगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है कि you are not a good speaker। ठीक है, and that last, try to speak in English। ठीक है, even try करो, try to speak English। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि you are just misunderstanding in between that लोग क्या कहेंगे, है ना। Because mostly we are coming from a village family, so यहाँ पे क्या होता है, जब हम वर्ड्स इंग्लिश थोड़े से यूज करते हैं, लोग बोलते हैं अंग्रेज बन रहा है ना। ये कौन क्या कह रहा है इसको छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए। जब आप ये सुनने लगेंगे कि कौन क्या कह रहा है, तो आप कुछ भी नहीं कह पाएंगे। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। इंग्लिश में बताऊं कि हिंदी में बताऊं? हिंदी में बताता हूं, ज्यादा समझ में आती है। एक किसान था, ठीक है, वो अपने बेटे के साथ क्या कर रहा था, रास्ते से जा रहा था, कहीं मार्केट में जा रहा था, कहीं दूर का सफर था तो जा रहा था। उसके साथ एक गधा था। गधा जानते हो? डंकी। गधे के साथ जा रहा था रास्ते में, वो दोनों पैदल थे, गधा को लेके साथ में जा रहे थे। तो कुछ दूर जाने के बाद क्या हुआ, किसान ने अपने बेटे को कहा कि तुम थक गए होगे, बैठ जाओ। ठीक है, जब बैठ गया बच्चा उसका बेटा, तो कुछ दूर जाने के बाद मार्केट में
दो तीन लोग देखे तो वो हंसने लगे और हंसने तेज तेज आपस में बात करने लगे। कितना बेवकूफ बेटा है। बूढ़े बाप को क्या कर रहा, देख रहा बूढ़ा बाप क्या कर रहा, पैदल चल रहा और अपना गद्दी पे बैठा हुआ है। अब आगे जाकर बेटे को लगा, उसको शर्मिंदगी कि हाँ वो लोग तो सही कह रहे थे। अब वो उतर गया, उसने अपने बूढ़े बाप को बैठा दिया कि पापा आप बैठ जाओ, मैं पैदल चल रहा हूँ। फिर से कुछ दूर गए, फिर से उनको क्या मिला, एक और आदमी मिल गया, एक और किसान मिल गया रास्ते में जाते वक्त। तो उसने क्या कहा, और उसने भी तेज से कह दिया कि कैसा बेटा, कैसा बाप है, अपने छोटे से बेटे को पैदल चला रहा, अपना गधे पे बैठा हुआ है। अब वो भी कुछ दूर जाने के बाद उसको भी, बाप को भी समझ में आया, शर्मिंदगी होगी कि हाँ वो सही कह रहा था। दोनों उतर गए, अब दोनों पैदल चल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, आगे मार्केट आई, बाप ने रास्ता भटक जाते हैं ना, तो रास्ते में रास्ता पूछने लगा कि भैया ये कहाँ जाएगा। तो उसमें से एक आदमी कहने लगा कि अकल नहीं है क्या आपको, गधा लिया हुआ है, दोनों लोग ऐसे जा रहे हो। अब क्या हुआ, दोनों आगे जाके दोनों साथ में बैठ गए इसके गधे के ऊपर। फिर जा रहे हैं, फिर से रास्ते में आगे जाकर एक बूढ़ी औरत मिली उसको, ठीक है। अब बूढ़ी औरत ने उसको रोका, कह रहा है निर्लज हो बिल्कुल आप दोनों, आप लोगों को दिल नहीं आपके पास, वो भी जानवर है, दोनों लोग एक साथ बैठ के मर नहीं जाएगा, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, वो दोनों भी फिर समझ में आया कि नहीं नहीं ये भी तो थक गया होगा। अब उन्होंने क्या किया, दो लाठी उन्होंने ली हुई थी, अब उन्होंने क्या किया, एक लाठी पीछे लगा दिया, एक लाठी आगे लगा दिया उन्होंने, और दोनों ने क्या कर दिया, गधे को उल्टा करके अपने कंधे पे टांग दिया, कंधे पे टांग के आगे जाने लगे। अब आगे जाने के बाद एक पुल आया, ब्रिज, ठीक है, और वो पुल बहुत कमजोर था। अब इन लोगों ने, क्योंकि वो थका हुआ था, वो तीनों एक ही साथ जाने लगे, और जैसे ही कुछ दूर पहुंचे पुल के, और पुल क्या हुआ, टूट के नीचे गिर। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? ये स्टोरी मैंने क्यों बताया? नहीं, बात सुननी चाहिए, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान नहीं देनी चाहिए। आप कभी भी ये मत सोचो कि सामने वाला क्या बोलेगा। जब आप सामने वाले को सुनते रहोगे, आप कि देखो, यू कैन नॉट सेटिस्फाई एनीवन, आप सभी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। आप कितना भी अच्छा काम करो, उसमें कोई ना कोई बुराइयां कोई ना कोई निकाल देगा। तो आप सबको सेटिस्फाइड करने के लिए मत जाओ, ट्राई टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि कोई चीजें आप अच्छी कर रहे हैं तो इट विल बी अच्छा। तो इसीलिए स्टार्ट करिए बोलना। डोंट थिंक दैट हु इज कमेंटिंग ऑन यू, आपके ऊपर कौन कमेंट कर रहा है। आप इंग्लिश बोल रहे हो, टूटी फूटी बोल रहे हो, आप बोल तो रहे हो, आपके क्लासमेट्स हैं, दे आर नॉट गुड स्पीकर्स ना, वो भी तो आपके साथ पढ़ रहे हैं। So try to make an environment. That is why I'm emphasizing on you that make an environment. आप कम से कम environment तो बनाइए उसका। जब तक environment नहीं बनता है तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। Okay? So try to speak in English. Thank you for that.